Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to the erosion business. We have talked something, or we have introduced this term, shelter beds and windbreaks in the previous lecture. Now this is a detailed lecture. What are shelter beds या windbreaks? ज़ाहिर है कि स्पीड ब्रेकर है तो विंड ब्रेकर है, शेल्टर बेल्ट है तो प्रोटेक्शन की बेल्ट है। और ये आप देखें कि दिस इज़ बायोलॉजिकल टेक्निक कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वॉल, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिल्डिंग, instead of providing a mounted system, we are providing plants to them which can be of other benefits also. This diagram shows that 50% wind reduction can occur just on the D side, or reduction 10 times, then wind reduction 10 times than the tree height. अगर आपकी ट्री 10 फुट है तो 10 times means कि 100 फुट तक this reduction would be observable. Definition ये है इसकी कि shelter belts or breaks protect plants, animals, crop or buildings against soil and wind erosion, but they slightly differ in their features. Slightly differ, दोनों का काम एक ही है। Shelter belts हम उनको interchangeably यूज करते हैं। Shelter belts are rows of trees and shrubs planted for protecting plants, crop, livestock, buildings. They are mostly planted perpendicular to the prevailing wind direction to prevent wind speed and reduce soil erosion. Windbreaks differ from shelter beds in the sense that they are planted as barrier of combination of trees, shrubs, other structures with aim to reduce the wind speed from protection against wind erosion. Generally, shelter beds are specific for protecting specific areas such as crop fields, while windbreaks have range of structures to reduce the wind speed and erosion. However, both these terms are used interchangeably. तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों का मकसद एक ही है। ये नहीं है जी कि आप विंड ब्रेक जो है ये आपके एनिमल्स को बचाएगा, शेल्टर बेल्ट्स आपके बिल्डिंग को बचाएंगे। दे वुड डू द सेम थिंग, बट समहाउ वो अगर आप टेक्निकलिटीज़ में चले जाएं, फाइनेंस में चले जाएं, तो थोड़ा बहुत फर्क होगा उन्नीस बीस का, लेकिन ये इंटरचेंजेबल वर्ड है, सेम थिंग. दिस डजंट मीन दे आर टू डिफरेंट फिनोमेना or two different structures. Wind breaks can reduce wind speed up to 80%. That modifies microenvironment in the sheltered zone. Sheltered zone वो है जो विंड के प्लांट्स के पीछे आएगा, फ्रंट में तो पौधे आ जाएंगे, उसके बाद जो पिछला उसके बाद जो है 80% reduction can be possible by depending upon the condition of the shelter, condition of the plants which you have removed. Wind breaks जो हैं deflect wind up and over the barrier, that is up and over the barrier, which eventually comes down to the ground level after some distance downwards. ज़ाहिर है कि जहाँ पे आप विंड ब्रेक पर आएंगे शेल्टर पर, वहाँ से हवा ऊपर हो जाएगी। जब ऊपर हो जाएगी तो फिर कुछ फासला तय करने के बाद वो अपने असली लेवल के ऊपर आ जाएगी. This distance is usually 10 to 20 times height of the building. ये 10 से 20 गुना हो सकती है हाइट ऑफ द प्लांट्स जो आपने यूज़ किए. 10 times more common assessment, 20 times sometimes, 20 times it could be there
और हवा ऊपर उठेगी तो नीचे बंद नहीं होगा, कि बंद तो आप कर नहीं सकते. You have to allow some wind to pass through it. The size or shape of protected zone depends on the design or structure of the window. Size और shape, किसी उसका साइज कितना होना चाहिए, शेप क्या होनी है, अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ विंडो. Size such plantation may be 15 to 16 meter wide. This is another aspect. ये 15 से 60 मीटर वाइड हो सकती है. Effects can be perceived. Perceived means आपको महसूस हो सकती है. 100 मीटर beyond the edge. जो एज होगा उसका तो 100 मीटर तक आप उसका फर्क देख सकते हैं. The wind break with 40 to 50% ground density is more effective than either 100 or 100. So this is again experimental evidence है. ये 40 to 50% का जो ground density है, that is more effective than 100% or 25%. 100% अगर होगी तो wind will definitely start to do turbulence cause करेगी, ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, रैकेट पूरी आएगी और ज़्यादा नुकसान देगी. 25% है तो विंड will be passing through it और कोई खास आपको फ़ायदा नहीं होगा. सो ये 40-50% वाला जो रेट है, दिस इज़ मोर इफेक्टिव टू रिड्यूस द विंड वेलोसिटी. फील्ड विंड ब्रेक्स प्रोटेक्ट क्रॉप्स. अगर आप खेतों के आसपास लगाते हैं तो कंट्रोल करने के लिए, तो वो आपके क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे. इंक्रीज बी पॉलिनेशन एंड पेस्टिसाइड इफेक्टिवनेस. ये इंक्रीज करेंगे बी पॉलिनेशन, क्योंकि हवा में तो बीज उड़ जाते हैं. कोई भी पॉलिनेटर जो है, इफ इट इज़ इंसेक्ट, वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. और इस तरह पेस्टिसाइड की जो इफेक्टिवनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है. लेकिन when windbreak is there, so we can withstand the effect, the fragrance or retention of pesticide dose is there. Windbreaks help reduce animal livestock stress. Windbreaks और काम भी कर सकती है, जिससे एनिमल और लाइफ स्टॉक स्ट्रेस को या मॉर्टेलिटी को कम कर सकते हैं. क्या स्ट्रेस है? तेज़ हवा चल रही है, एनिमल्स सफ़र होते हैं, बर्ड्स सफ़र होते हैं, लाइफ स्टॉक स्ट्रेस में होते हैं, मॉर्टेलिटी डेथ हो जाती है, रिड्यूस फीड कंजम्पशन भी कम हो जाती है, और रिड्यूस विजुअल इम्पैक्ट्स एंड ओडर्स. और कोई स्मेल वगैरह है तो वो एक दफ़ा आई वाज 8th 9th student था. Early in the morning, I used to go to the milk shop to get milk for the family. तो मैं जब रास्ते में जा रहा था, ये दिस इज स्टोरी ऑफ फर्रुख. सो मैं बाहर निकला, रोड साइड पे जितने भी दरख्त थे, उस रोड के ऊपर जितने परिंदे घोंसले अंडे बच्चे थे, सब मरे हुए थे. सोच लो, दिस वॉज ड्यू टू विंड. इतनी तेज विंड थी रात को कि जो एनिमल भाग सकते थे वो भागते, जो नहीं भागे. बारिश वॉज देयर आल्सो, सो दे मॉर्टेलिटी कम हो सकती है अगर आपके पास विंड ब्रेक्स. 4 टाइप्स की विंड ब्रेक्स हो सकती है. 4 टाइप्स की. 1 रो, आपसे ज़्यादा कि 1 रो में 2 रोज में हो सकते हैं, 3 रोज में हो सकते हैं, 4 या इससे ज़्यादा रोज हो सकते हैं. अब ये जो रोज़ है ये डिपेंड करेगा विंड वेलोसिटी पे, लोकेलिटी पे और आपकी ख्वाहिश पे भी, कि what kind of break, what kind of shelter, what kind of break you want to have. 1 रो ब्रेक आप देखें कि श्रब की हो सकती है, एवरग्रीन ट्रीज की हो सकती है, या डिसिड्यूस ट्रीज की हो सकती है.
These are one row of the cake row. It consists of densely planted single row of deciduous or other shrubs or trees. We usual है common है fields के लिए, क्योंकि फील्ड के ऊपर खेतों के बॉर्डर्स पे ये चारों तरफ हम थिक रोज नहीं लगा सकते, सिंगल रो लगाते हैं प्लांटेशन का उसमें, और इसका लिमिटेड वैल्यू है टू वाइल्ड लाइफ. Trees preferably have narrow crowns, which is in the populars they serve the dance quickly but never do it. लंबे ऊंचे बूटे फसलाने हैं. 2 rows हो सकती हैं, 2 rows, that is evergreen हो सकती है और dense हो सकती है. 2 rows, twin row, high density or low density. High density, low density. Consists of standard dense 2 layers plantation of evergreen plants. Evergreen plants क्योंकि सर्दियों में पत्ते नहीं होंगे, विंड होंगी तो इफेक्टिव नहीं होंगे. It is suitable for again fields, orchards, outdoors, urban setting or wildlife. 2 row high density has a 3 layers planted alternately with a standard space in 2 rows of decks or 1 evergreen, 1 shrub or 1 deciduous trees standing spacing between them. So दोनों हो सकते हैं. 3 rows. ये first row is composed of shrubs. इस तरह की 3 rows पे लगी. Second of deciduous trees. Third of evergreen trees. 3 row, one after the other. It is suitable for protecting fields, farmstead, feedlots, wildlife के लिए. 4 or more. So ये अब ज़रा ज़्यादा उस पर है कि 4 रो या ज़्यादा हो सकते, 4 से ज़्यादा. First row shrub, second row small deciduous trees, third row large deciduous trees, और fourth row जो है या एक छोटी, उसके ऊपर बड़ी, उसके पीछे उससे बड़े, उसके उससे बड़ी. आपको एक स्लोप सा नजर आएगा. Excellently protects feedlots, farmsteads, wildlife. बलूचिस्तान में आप देखें कि मस्तूल के एरिया में, इट इज अ डेजर्ट एरिया, सैंडी डेजर्ट है, ड्राई डेजर्ट है. Wind breaks consist of Tamarix gallica, 1 row. या 2 rows की हैं Tamarix gallica और Rhododendron. Tamarix is a tree, Rhododendron is a shrubby plant can. 3 rows Tamarix gallica, Rhodo और gallica shrub. Increased yield 8, 15, 14% respectively. पहले अगर सिंगल रो है तो 18% इंक्रीज है yield क्रॉप्स की. 2 रोज हैं तो 15%. अगर 3 रोज लगाते हैं तो भी 14%. So that means no difference is there in 2 or 3 rows. 2 would be enough. The wind breaks also increase soil moisture in the top 150 millimeter. ज़ाहिर है कि wind breaks पूरों की हवा की स्पीड कम होती है. Moisture loss is decreased. Moisture retention is more. So that is another additional factor which can be provided to the crops. The height, density, number of rows, length, orientation of species composition, wind continuity determine the effectivity of living things in reducing wind speed or modifying climate. Height of the plant, population, density के dense है कितना है, number of rows 1, 2, 4 या ज़्यादा, length कितनी है, छोटे एरिया में है या बड़े एरिया में है, और ओरिएंटेशन क्या है. ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी आपकी सूटेबिलिटी, इफेक्टिविटी, कारगुजारी पे. हाइट ऑफ विंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
हाइट ऑफ विंड ब्रेक की ब्रेक, अगर आप 2 फुट की विंड ब्रेक लगाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। 100 फुट की लगा दें उसका भी फायदा नहीं है। देयर इज एन एवरेज हाइट कि जी आप ऐसे लगाएं जी कि आपका नुकसान भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी हाइट ट्री wind को sustain नहीं कर सकती. So a suitable size has to be determined. On the windward side, wind speed reductions upwind are measurable 2 से लेके 5 times तक हो सकती है. That is, जो भी आपकी wind wave की हाइट है, फॉरेस्ट ट्रीज हैं उसमें, so 2 to 5 times, 2h to 5h तक हो सकती है. मीन्स कि अगर 5 फुट की ट्री है तो 25 टाइम्स हाइट उसके पीछे जो रहेगा क्या करके आती लीवर साइड, और ये जा सकती है 10 टाइम्स तक. बट सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स, सिग्निफिकेंट मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट यूजुअली वो 1/5 ऑफ दिस रेजिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल 30 feet tree wind break, the wind speed is variable up to 60 to 150 feet windward, up to 900 on the lee side. Lee side means back of the wind shelter. Denser barrier, lesser would be the passage. अगर आपका बैरियर डेंस है, बहुत थिक है, तो एयर पैसेज कम होगा. लेसर विल बी एयर पैसेज. एयर पैसेज कम होगा तो एयर पास भी होगा, टर्बुलेंस पास होगी. 40 to 60% जो है कि अगर आप कोई शेल्टर बेड बनाते हैं 40-50 या 40-60 पर, तो ये एक्सीलेंट है आपके इरोजन कंट्रोल. और राइट एंगल्स पे इसको then have to wind break determines the total area receiving protection. Length एक तो हाइट हो गई, दूसरी लेंथ कितनी बड़ी होनी चाहिए. दिस इज वन एग्जाम्पल. आप देखने डायग्राम में कि 48 किलोमीटर लेंथ है विंड वेलोसिटी. मैक्सिमम हाइट जो है वो मतलब 2 मीटर्स है. आप चलते जाएँ 24 किलोमीटर तक आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है. इफेक्ट ऑफ विंड और 10 टाइम्स इंसिडेंट 10 गुना के बाद आपकी 5 तक सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको मिल सकती है. आप याद देखें ये विंड्स 4 किस्म की वजह से बनाई गई. बेनिफिट्स क्या है? सम ऑफ द बेनिफिट्स आई हैव ऑलरेडी discussed in the previous one. So they reduce cost of energy around the farmstead. Farmstead में आपका उनके लगाने में खाने के साथ ही शेल्टर, एनिमल शेल्टर, एनिमल हवा आवाज़ दी. So well designed breaks reduce cost 10-20% तक आपकी cost reduce हो सकती है. और homes farmstead और heating खास करके इसमें जहाँ हीटिंग की जरूरत होती है. Reduction of odor around livestock. ध्यान दीजिए कब्जा करना बैल के साथ ही चलना साथ ही सांप भी बैड स्मेल ये रिड्यूस हो सकता है. अगर आपने एक शेल्टर बेड लगाई है तो probably that would be filtered by those trees. अगर आप किसी भी पोल्ट्री शहर सड़क पे गुजर रहे हैं, ये अगर आप नौशेरा रोड पे जा रहे हैं GT रोड पे, तो उसके आस पास ज़रा से फासले पे पोल्ट्री फार्म्स हैं. यू कैन स्मेल व्हाइल गोइंग इन द कार ऑन द रोड बिकॉज पोल्ट्री फार्म्स आर देयर, कैटल फार्म्स आर देयर. तो ये वजह है कि ये इंडस्ट्रीज कॉलोनीज में या ऐसी कॉलोनीज में जो management does not allow to have cattle in the houses, क्योंकि किसी एक गाय भैंस की होगी तो मोहल्ले में स्मेल there. Improvement of microclimate is there for crops.
protection of livestock from wind stress. Already I have discussed this. Manage snow around roads and farms. ये blowing wind जो है तो drifting allow नहीं करेंगे और enhance cost of maintenance. Manage snow and the croplands. Snow water is an important source of crop production. So wind breaks traps, retain करती है, pasture retains for longer time. Provides ecosystem services. This means कि ये जो shelter beds हैं, पौधे हैं, तो they provide habitats for birds, animals, insects, recreational opportunities, clean air, reduce wind erosion, improve fertility, structure, moisture, promote reposition of carbon dioxide from atmosphere by woody plants. Wildlife को benefits हो सकती है क्योंकि via such wind bridge provide suitable habitats for the birds, insects, other animals, games. ये एक additional space provide करती है for the micro plants, for the microorganisms, sorry, whales के लिए, pigeons के लिए, hunting के लिए, वहाँ पे आप hunting कर सकते हैं, shooting कर सकते हैं. Timber additionally आपको मिल जाता है. ये जो ज़मींदारांचे गेट छापेरा उन्हें खरीदे पटोने हवा दवजून पर दे दवजून पर चे अभी तक लड़के में लक्ष्य for fuel wood, firewood, for construction wood. ये आपको एक एडिशनल 3-4 साल के साइकिल से देर से कटिंग and you can remove them easily. Source of fruits, floral, honey bee इसमें बनती है, छत्ते इनके बनते हैं, erosion control हो सकते हैं, reduce हो सकते हैं. क्रॉप में evapotranspiration कम हो जाता है और एस्थेटिक वैल्यू है, खूबसूरती है. अगर आप घर के बाहर लगाते हैं, घर में लगाते हैं, फील्ड के बाहर लगाते हैं, खेतों में लगाते हैं, खूबसूरत लगता है. ये कभी कभी आप देखें फिल्में फोटो जो फॉरेन की हैं तो उन्होंने जो शेल्टर बेड्स बनाए होते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं. जो ऑर्चिड्स हैं उनके चारों तरफ प्रोटेक्शन इज देयर. डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ फायदा ही फायदा है, डिसएडवांटेज भी है. व्हेनेवर यू हैव शेल्टर बेड्स, इनकी रूट्स, इनकी शेड compete करेगा क्रॉप्स. Wind breaks can create some potential barriers to the equipment. उसमें से ट्रैक्टर पास नहीं हो सकता, प्रॉपर प्लानिंग आपकी हो सकती. हम गाँव में घर बना रहे थे, उसमें पहले से दरख्त थे, फूल थे, तो मेरा ख्याल था कि जहाँ जहाँ कमरों के निशानात आएंगे तो वो काट देंगे, बाकी छोड़ देंगे. वो जो इंजीनियर साहब हैं उसने बनाना तो उन्हें कट करना वाला कच में चुप गया नक्शा जो प्लानिंग डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है इसके लिए. विंड बैग्स हैबिटेट और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, ये जिस तरह के अभी मैंने कहा ना, एक आस्पेक्ट है कि दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द यूजफुल ऑर्गेनिजम्स, फॉर द पॉलिनेटर्स, but at the same time they have habitat for the harmful disease biting insects. They can provide habitats for harmful insects, pests, pathogens, snakes, lizards, predators. शेड कास्ट करना, शेड का तो ये हो सकता है कि आप जो नैरो कैनोपीज वाले हैं उनको आप कल्टिवेट करें, वाइट कैनोपी को न करें. आप धूप पहुँचाना न लगाएं, आप उसमें फिग न लगाएं, पीपल और बड़ का दरख्त न लगाएं. बड़ के दरख्त मतलब नेट में देखें 100 फुट इधर उधर फैल जाते हैं, रूट्स भी और शेड्स भी. ऐसे नहीं, नैरो लगाएं, फिर ऐसे लगाएं जिससे वो डीप फीडर हो, क्योंकि क्रॉप्स आर शैलो फीडर्स. आप डीप फीडिंग रूट्स वाले पौधे लगाएं कि वो नीचे चले जाएं, जनरेशन से बन जाए. This was about this aspect
Thank you very much for listening. Should you have any comments, suggestions, please, I have given you the email. You can send your suggestions. Like it, share it, subscribe it, so that you can get more lecture you can be getting. This I will be covering actually the entire course plus some additional things. We are going chapter wise. अगर आप मॉडर्न की किताब देखें या साइल की तो या एमएससी का कोर्स देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं, वहीं से मैं ले रहा हूँ। मोस्टली वही चीज़ें हैं जो मैं एग्जाम्पल क्लास में देता था, अभी भी आपको वही मैं दे रहा हूँ।